Hello everyone, welcome to Aeon IS Academy. This is Harshdeep Ghuge. This is an introduction to UPSC Civil Services Examination. UPSC, that is Union Public Service Commission, also called as Sangh Lok Seva Ayog in Hindi. This commission, this constitutional body, conducted number of exams like National Defence Academy, then Combined Defence Services, then Engineering Services, then Combined Medical Services, etc. When anybody says that I am preparing for UPSC, this is very vague statement. The most appropriate is you should mention the exact name of that particular examination. In this lecture, we will discuss about the Civil Services Examination, that is CSE. We will also discuss the eligibility criteria, education qualifications, services and posts allocated to the aspirants who crack this examination, what is the exam pattern, demand of the exam, strategy and the myths about the exam. UPSC CSE conduct every year. जनरली इसके 3 स्टेजेस होते हैं. प्रीलिम्स इज़ देयर, मेंस इज़ देयर, इंटरव्यूज़ आर देयर. प्रीलिम्स जनरली मई के अगस्त के बीच में कंडक्ट होती है. देन जो मेंस एग्जामिनेशन रहती है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट होती है एंड द इंटरव्यू इज़ इन मार्च टू मई. ओके, दोनों के बीच में कंडक्ट होता है. बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस, प्रीलिम्स का जो यूपीएससी ने डेट्स को रीशेड्यूल किया है वो है 4 अक्टूबर 2020 एंड जो मेंस की एग्जामिनेशन है वो है 8 जनवरी 2021 नेक्स्ट ईयर. और इंटरव्यू के रिगार्डिंग अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं किया है. द वेल नोन पोस्ट अमॉन्ग आर IAS, IPS, IFS, IRS and IFOS, that is Indian Forest Service and many others. We will discuss details about these services on the next slide. So this examination, civil services examination, comprises 2 successive stages. The first stage is civil services preliminary examination and second stage is civil services mains examination. जो फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रहती है एंड दिस स्टेज इज़ फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. और जो सेकंड सक्सेसिव स्टेज है वो दैट कंटेन रिटर्न एंड इंटरव्यू, उसका एम है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेरियस एंड सर्विसेज पोस्ट. टोटल 24 सर्विसेज एंड पोस्ट अलोकेट किए जाते हैं. लेट्स सी कौन कौन सी पोस्ट रहती है वो. सो दिस इज़ द वी कैन से द चार्ट विच क्लियरली मेंशन कि कौन कौन से पोस्ट मीन्स अलोकेट की जाती है. सो देर आर टोटल 24 पोस्ट आर देयर. आउट ऑफ दैट 3 आर द ऑल इंडिया सर्विसेज. फर्स्ट वन इज़ वेरी फेमस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, then Indian Police Services and Indian Forest Services. Why this services called as All India Services? Because after the selection आपको एक स्टेट कैडर मिल जाता है जिसमें थ्रू आउट द करियर आपको उसी स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो आपका रिक्रूटमेंट इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आपकी जो सर्विसेज रहेंगी, आपका पूरा टेन्योर जो रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर स्टेट कैडर में. देन देर इज़ अनदर सर्विसेज कॉल्ड एज सेंट्रल सर्विसेज जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की टोटल पोस्ट आती है. ग्रुप ए में टोटल 16 पोस्ट आर देयर एंड ग्रुप बी में टोटल 5 आती है. So these are the group B and these all are the group A services. Age limit. Age limit, the candidate must attain the age of 21 year and must not have attained the age of 32 year on the 1st August of 2020. अभी तो 2020 का नोटिफिकेशन लिखा था उसमें डेट को मेंशन किया था. सो 21 to 32 is the age limit. For OBC category 35 years is there and for scheduled caste and scheduled tribe 37 year is the age limit. The minimum qualification required is the candidate must hold the degree of any university incorporated by an act of central or state legislature in India. Here they clearly mention कि the minimum education qualification degree, and if we stress on this word why they just need a degree. सो ये बात अपन को क्लियर कट दिखाती है द डिमांड ऑफ यूपीएससी कि यहाँ पे आपको कोई टेक्नोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ना ही यू शुड पास आउट फ्रॉम सम प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM. दे जस्ट वांट द प्लेन डिग्री एंड दे जस्ट वांट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटल प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन. दैट्स वाई डिग्री इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन. देन
The number of attempts for general category only 6 attempts are there. For OBC maximum 9 attempts are there, and for SC and ST the जो उनकी अपर एज लिमिट है दैट इज़ 37 एज लिमिट, इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट वो दे सकते हैं. बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, एंड दिस इज़ द सजेशन जो मोस्ट ऑफ द मेंटर्स या मोस्ट ऑफ द अचीवर्स आपको देते हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया है, कि यू शुड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सो यू शुड गिव मैक्स टू मैक्स 3 to 4 अटेम्प्ट्स. उसे अच्छी तरह से फोकस कीजिए, एंड अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है तो अच्छी बात है, सेकंड थर्ड को फिर से ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं होता है देन यू शुड थिंक अबाउट द प्लान बी इन योर लाइफ, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन, समटाइम वी बिकम द इमोशनल अबाउट दिस एग्जामिनेशन कि अरे नहीं, अगर मीन्स आई कांट लिव विदाउट UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी. डोंट गिव सच टाइप ऑफ फुलिश इमोशनल स्टेटमेंट जो, एंड if you are emotionally inculcate with the idea of UPSC CSC, then it is not the requirement. You should be very rational and very practical. 2-3-4 अटैम्प्ट देना चाहिए मैक्स टू मैक्स. अगर उसमें होता है तो ठीक, देन अदरवाइज यू शुड वर्क ऑन योर प्लान बी इन योर लाइफ, बिकॉज दिस इज़ द एज, ओके, जो आपका 21 से लेके जो 25-26 तक जो एज रहता है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन योर लाइफ. इस एज में आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो इफ़ आप खाली एक एग्ज़ाम के लिए काम करते हो और अगर सक्सेस नहीं मिलता है बाय चांस या बाय लक, देन यू शुड वर्क ऑन द प्लान बी. अभी एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं. दिस एग्जामिनेशन कंटेंट थ्री स्टेजेस: प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. जो स्टूडेंट प्रीलिम क्रैक करते हैं देन एंड देन दे कैन अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. जो मेंस एग्जाम्स का कट ऑफ को अचीव करते हैं देन एंड देन दे कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, दैट इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ UPSC CSC. अभी एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा और डीप में स्टडी करते हैं. UPSC में अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू आते हैं. ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स रहती है उसमें 2 ही पेपर रहते हैं. जो पेपर फर्स्ट रहता है उसको कहते हैं जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, दैट इज़ GS फर्स्ट, और जो सेकंड रहता है उसको कहते हैं जनरल स्टडी पेपर सेकंड, और इसी पेपर को कहते हैं CSAT, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें आपका थोड़ा मैथ आता है, थोड़ा रीजनिंग आता है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आता है. ओके, सो प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर, फर्स्ट वन इज़ GS पेपर फर्स्ट एंड सेकंड वन इज़ GS पेपर सेकंड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CSAT. ओके, ये टोटली सेकंड पेपर जो रहता है CSAT का, ये क्वालिफाइंग नेचर में रहता है. इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इसमें टोटल 9 पेपर रहते हैं. एक लैंग्वेज का पेपर, उसमें लैंग्वेज के पेपर रहते हैं. ये जो लैंग्वेज के पेपर थे इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आपको एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है. सो ऐसे लैंग्वेज के 2 पेपर रहते हैं. ये दोनों भी जो लैंग्वेज के पेपर रहते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं. आपको उसमें एक मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं. देन एंड देन आपके जो पूरे रिमेनिंग पेपर है वो चेक किए जाते हैं. उसके बाद में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ, ऐसे जनरल स्टडीज के 4 पेपर रहते हैं. देन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर रहते हैं और आपका एक एसी का पेपर रहते हैं. सो ऐसे GS के हो गए टोटल 4, आपके ऑप्शनल के हो गए टोटल 2 और आपका एसी का हो गया 1. सो ऐसे टोटल होते हैं आपके 9. ओके, लैंग्वेज के 2 क्वालिफाइंग, देन आपके रिमेनिंग 7 पेपर्स. ओके, सो दीज आर द यू कैन से द एग्जाम पैटर्न्स ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन. और आपका जो इंटरव्यू रहता है उसके बाद में दैट इज द जो लास्ट स्टेज रहती है उसको कहते हैं अपन पर्सनालिटी टेस्ट. ओके, सो एक बात आप आपके माइंड में रखो कि प्रीलिम्स में 2 पेपर, मेंस में टोटल 9 पेपर आते हैं. उसमें से भी लैंग्वेज के पेपर जो रहते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर में रहते हैं और जनरल स्टडीज के 4 पेपर आते हैं उसमें, और आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपन वैकल्पिक विषय कहते हैं इन हिंदी लैंग्वेज. आपको कोई भी सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर कोई लिटरेचर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है. तो ऑप्शनल पेपर के रिगार्डिंग आगे अपन अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. अभी प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है, स्टेप बाय स्टेप अपन इस एग्जामिनेशन के जो कोर एरिया है उसमें अपन अच्छी तरह से डिटेल में जाने वाले हैं. प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जामिनेशन कंटेंट 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क ईच. ये जो दोनों पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं.
वो भी एमसीक्यूज पैटर्न में रहते हैं, ईच विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ओके, 2 घंटे के पेपर होते हैं। जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड रहता है, जिसको मैंने बताया था सीसेट कहते हैं। ओके, विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फिक्स एट 33% आउट ऑफ 200। यानी जो पेपर सेकंड रहता है, सीसेट का पेपर रहता है, वो 200 मार्क्स का रहता है, और मींस उसमें से आपको 200 में से आपको खाली 66 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर 200 में से आप 66 से ज्यादा मार्क्स लाते हो, देन आपने इस पेपर सेकंड को क्वालिफाई किया, ऐसा होता है। और देन एंड देन आपका जो जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका चेक किया जाता है। सो ये जीएस पेपर सेकंड, ये सीसेट का जो पेपर रहता है आपका प्रीलिम्स का, इट इज लाइक योर स्क्रीनिंग टेस्ट। जब इसको आप इसमें आप 66 से ज्यादा मार्क्स लाओगे, दिन एंड दिन आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट चेक किया जाएगा। और जनरल स्टडी जो पेपर फर्स्ट पेपर है, इस पेपर के ऊपर आपका कट ऑफ डिपेंड्स रहता है, और वो डिसाइड करते हैं कि आप मेंस के लिए अपियर होने वाले हो या नहीं। ये जो दोनों पेपर रहते हैं, सीसेट का और आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का, the question paper will be set both in Hindi and English language. There is a negative mark in both paper. Okay, penalty of 33 marks of the allocated mark as per question for the incorrect responses. यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है। कितनी रहती है निगेटिव मार्किंग? जितने मार्क्स है उसके 33% मार्क क्या होते हैं, आपसे डिडक्ट हो जाते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपका जो जनरल स्टडी का पेपर रहता है फर्स्ट पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। सो 2 मार्क्स का मीन्स उसका वन थर्ड जो नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी आपका 0.66 जो मार्क्स है वो डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपका एक सवाल गलत आता है तो, इन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। और जो पेपर सेकंड रहता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2.5 मार्क्स का रहता है, 2.5 मार्क का रहता है। तो उसका अगर वन थर्ड निकाला जाए तो आपका उसमें 1.66 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाते हैं। सो ऐसा ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न रहता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सो ये जो एग्जामिनेशन है, दिस एग्जामिनेशन इज only for those students जो प्रीलिम को क्रैक करते, दिन एंड दिन दे कैन अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में आइडिया लेते हैं। these are the syllabus of general study paper first. There are total 7 bullet points जो आपके prelims के syllabus में mention किए हैं। The first one current events of national and international importance, इसमें आपका पूरा current affairs आता है। Then second is history of India and Indian national movements. Next is India and the world geography, जिसमें physical, social, economical geography of India as well as world के बारे में study किया जाता है। So देखो ये जो total 7 points है, these are the syllabus of your प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जीएस पेपर फर्स्ट, जिसका आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। बट अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक को अच्छी तरह से अगर डिटेल में यानी ऑब्जर्व करते हो, जो फर्स्ट टॉपिक लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीनिंग बाय दिस वर्ड करंट इवेंट्स, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, आपका जो करंट अफेयर्स रहता है, चालू घड़ामोड़ी रहता है, और ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अभी उन्होंने खाली यहाँ पे करंट अफेयर लिखा है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक न्यूज़पेपर में आपके 200 मींस 100 to 200 न्यूज आती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर। सो ऐसे पूरे साल के जो मींस यूपीएससी तो 2-2, 3-3 साल के भी अभी करंट अफेयर पूछने लगी है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में, so they didn't mention the detailed syllabus here, they just mentioned the name of subject, that is history of India. It is very difficult for anybody to understand कि what is the history of India, बहुत डिटेल होती है। इसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री आता है, मिडाइवल आता है, then you have the modern history is there, post independent is there, post globalization is there, वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है। तो इतना डीपली आपका हिस्ट्री इतने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। सो अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में देयर इज ए वेरी लिमिटेड सिलेबस, खाली आपका सब्जेक्ट के नाम दिए, इसका जो डिटेल सिलेबस के बारे में जो डिटेल्स है वो आपके मेंस के सिलेबस में है, जिसको अपन आगे जाके देखने वाले हैं। एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ योर पेपर सेकंड, जिसको सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, एंड ये जो और थोड़े बेसिक न्यूमरेसी, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है। बट इन यूपीएससी क्लियरली मेंशन इन देयर नोटिफिकेशन कि इसकी जो लेवल रहेंगी वो कितनी रहेंगी, क्लास 10 तक रहेंगी। ओके, क्लास 10 तक रहेंगी। सो
ये जो पेपर है जीएस पेपर सेकंड पेपर, ये कितने मार्क्स का रहता है? ये रहता है 200 मार्क का। बट इतने इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहता है 2.5 मार्क्स का। और जो जीएस पेपर फर्स्ट जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था पहले स्लाइड के ऊपर, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स का रहता है, यानी वन क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। ओके, ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट में आपके एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स अलोकेट किए और पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स अलोकेट किए। ये जो सीसेट पेपर है द 80 क्वेश्चन ऑफ फॉर 200 मार्क्स एंड इस क्वेश्चन कैरिंग द 2.5 मार्क्स। ओके, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको जितना अच्छी तरह से आप समझ लोगे इट इज रियली बेटर फॉर यू। क्योंकि क्या होता है, यू नो, मोस्ट ऑफ the educator regarding this civil services exam always used to call this examination as a Chakravyuh. Okay, so what is the Chakravyuh of civil services examination? Just understand why, means when I'm saying this Chakravyuh, ये Chakravyuh का क्या मतलब होता है? Just understand this examination. Okay, we just know that कि the first stage is prelims, then उसके बाद में आपका मेंस होता है। जब आप मेंस क्रैक करते हो then you have the interview. Now, is there any syllabus for prelims? अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, इज इट द सिलेबस? दैट इज नॉट द सिलेबस एज सच। अगर आप देखोगे सिलेबस बहुत डीप में होता है, अच्छी तरह से लिखा जाता है। सो आपके प्रीलिम्स में सिलेबस लिखा हुआ नहीं, दे जस्ट मेंशन द नेम ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको डिकोड करना, उसको डिसइंटीग्रेट करना बहुत बड़ी टास्क होती है। सो देयर इज नो सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। कहाँ पे सिलेबस है? तो सिलेबस आता है मेंस के यहाँ पे। सो मेंस की जब आप मैं मेंस की आपको स्लाइड दिखाऊं तब आपको पता चलेंगे कि वहां पे कितने अच्छी तरह से सिलेबस लिखा है। सो प्रीलिम्स के बाद में आता है आपका मेंस, बट प्रीलिम्स में सिलेबस नहीं है तो आपको आपका प्रिपरेशन कौन से स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा? मेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जब आप मेंस का प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक इन योर माइंड इज whether you are clear about yourself or not, why you are preparing for civil services examination, what you think that which are the qualities जो ऑफिसर्स में होती है आप में है, या कौन सी बात है कि जिससे आपको ऐसा लगता है you will become the most responsible civil servants। क्यों आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में you are the really good place। so ये जो क्वेश्चन रहते हैं that जो डिसाइड करते हैं कि हाउ आपकी पर्सनैलिटी कैसे वर्क करती है। so वो पूरे जो डिटेल क्वेश्चन है वो आपको कहाँ पे रिजॉल्व करने पड़ते हैं? इन द इंटरव्यू सेशन। सो देखा जाए, फर्स्ट स्टेज आती है प्रीलिम्स, सेकंड आती है मेंस एंड थर्ड आती है आपका इंटरव्यू। बट आपका प्रिपरेशन टोटली उल्टा स्टार्ट होता है। पहले आपको आपका व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना पड़ता है। जब आपका व्हाई क्लियर होता है देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पढ़ाई अच्छी तरह से होता है देन यू कैन स्टार्ट इन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखा जाए तो अपन को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स से मेंस, मेंस से इंटरव्यू पढ़ाई करनी पड़ती है, बट जो डायरेक्शन है स्टडी की वो इंटरव्यू से लेके मेंस जाना पड़ता है और मेंस से लेके प्रीलिम्स जाना पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड एज ए चक्रव्यूह। अपन को ऐसे लगता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाना पड़ता है, बट उस दिशा से नहीं जाना पड़ता, टोटली रिवर्स डायरेक्शन से जाना पड़ता है। ओके, सो इस एग्जाम ये जो डायग्राम है व्हेन आई एम सेइंग डिकोडिंग द चक्रव्यूह ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसको अच्छी तरह से मैं आगे एक स्लाइड है जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल देके बता दूंगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन और इसको कैसे अपन डिकोड कर सकते हैं। सो खाली एक पॉइंट आपके इस स्लाइड से खाली एक पॉइंट आपके माइंड में फिक्स करो कि आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है उसको आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेंस में आपके अच्छी तरह से सिलेबस दिया है। और उसको यानी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करने के से पहले द फर्स्ट थिंग जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, यू नो, जब भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है आप में से जो अभी काउंसलिंग के लिए आए होंगे, यू नो, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको काउंसलर ने पूछा होगा दैट इज व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द, यू नो, आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो जो एटीट्यूड चाहिए, माइंड का जो आपके एटीट्यूड चाहिए, वेदर यू हैव दैट एटीट्यूड और नॉट, और अगर नहीं होता है तो उसको किस तरह आप डेवलप कर सकते हो। सो ये जो टोटली इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में जनरली आपके मेंटरिंग या फिर काउंसलिंग के सेशन में आपको बताया दिया जाता है। ओके, सो इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से अपन समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड्स।
अभी जो मेंस का, अभी इसके पहले अपन ने प्रीलिम्स का एक पैटर्न देखा था, अभी मेंस का जो पैटर्न है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिससे क्या होता है आपको हर एक स्टेप से वन बाय वन एक आइडिया आ जाएंगे। अपन ने प्रीलिम्स में देखा, प्रीलिम्स में 2 पेपर रहते, जीएस पेपर फर्स्ट एंड सीसेट, एंड उसका कितने मार्क्स का रहता है और कितनी ड्यूरेशन का है उसको अपन ने देखा है। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द मेंस जो एग्जामिनेशन रहते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर आर देयर, टोटल 9 पेपर आर देयर। ओके, 9 पेपर रहते हैं। 9 पेपर में जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था लैंग्वेज के 2 पेपर रहते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। क्वालिफाइंग नेचर क्या ने, ये जो लैंग्वेज के 2 पेपर रहते हैं, ये पेपर के जो मार्क्स है ये आपके फाइनल मार्क्स में काउंट किए नहीं जाएंगे। ओके, सो क्वालिफाइंग पेपर में 2 लैंग्वेजेस आती है। पेपर जो फर्स्ट रहता है इसमें से आपको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। इफ यू बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इफ यू आर द होल्ड ऑन मराठी लैंग्वेज, अगर 10th 12th तक अगर आपने मराठी पढ़ी है देन आप उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। उसे कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। देन पेपर बी रहता है जिसमें आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये जो दोनों पेपर रहते हैं वो 300 मार्क्स के रहते हैं। ओके, और इसमें से आपको मीन्स द क्वालिफाइंग मार्क इज ओनली 25%, मीन्स आपको 300 में से खाली 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ओके, so the qualifying mark of 25%, that is 75 mark out of 300. so 75 मार्क अगर आप लाते हो पेपर फर्स्ट में एंड सेकंड में, इसका मतलब यू क्वालिफाई द लैंग्वेज पेपर, एंड वंस यू क्वालिफाई दिस लैंग्वेज सेक्शन देन एंड देन आपके जो रिमेनिंग सिलेबस है ये आपका रिमेनिंग पेपर है उसको आपके चेक किए जाएंगे। ओके, सो दीज आर द 2 पेपर्स। टोटल मैंने बताया टोटल 9 पेपर्स है। 9 में से ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। नाउ अभी जो क्वालिफाइंग के बाद में जो रिमेनिंग पेपर रहते हैं, रिमेनिंग 7 पेपर्स रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है जस्ट देख लो। पेपर जो द फर्स्ट पेपर इज ऑल अबाउट द एसे, इसमें आपको एसे लिखना पड़ता है। इट इज ऑफ 250 मार्क्स। जो पेपर सेकंड रहता है जिसको जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट कहते हैं, देन आपका जनरल स्टडी पेपर सेकंड आता है, थर्ड आता है एंड फोर्थ आता है। पूरे जो रिमेनिंग क्वेश्चन, ये जो चारों पेपर है कितने मार्क्स के रहते हैं, 250 मार्क्स के। एज वेल एज आपको मैंने बताया था कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी 2 पेपर रहते हैं। एक पेपर रहता है 250 मार्क्स का एंड 2 पेपर हो गए 500 मार्क्स के। ओके, और लास्ट में रहता है आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट जो रहता है आपके 275 मार्क्स का। तो अगर टोटल की जाए इसके टोटल कितनी होती है, 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स। ये जो 2025 मार्क्स होता है ये है आपका ग्रैंड टोटल। और इस 2025 मार्क्स में आपके लैंग्वेज के 2 पेपर है, इसके मार्क्स को काउंट किया गया नहीं है। ओके, जस्ट बेयर दिस फैक्ट्स इन योर माइंड कि ये जो लैंग्वेज के पेपर है ये टोटली क्वालिफाइंग नेचर के, इसके इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल ग्रैंड टोटल में काउंट किए नहीं जाते हैं। ओके, सो अभी ये जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट बोला था, इस जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में सब सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर अच्छी तरह से देखते हैं। देखो, पेपर सेकंड जिसको जिसको कहते हैं जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। पेपर सेकंड यानी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड यानी जनरल स्टडी पेपर सेकंड, पेपर फोर्थ यानी जनरल स्टडी पेपर थर्ड, एंड पेपर फिफ्थ यानी जनरल स्टडी पेपर सिक्स। ओके, ऐसे जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे 4 पेपर है जो 250 मार्क्स के ईच रहते हैं। ओके, नाउ पेपर जो फर्स्ट है, जनरल स्टडी का जो पेपर फर्स्ट है, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दिस इज द वन पोर्शन आता है। देन देयर इज अ वन पोर्शन कॉल्ड एज हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। सो देयर आर टोटल 4 सब सब्जेक्ट्स जो आपके इंडियन स्टडीज के पेपर के अंडर आता है। आपका हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड आपका सोसाइटी हो गया। ओके, देन आपका सेकंड पोर्शन आता है, सेकंड सब्जेक्ट आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो ये जो सेकंड पोर्शन है इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान से जो डिटेल्स रहते, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या रहता है, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें इसमें रहती है। एज वेल एज जो पॉलिटी आपका जो मीन्स जो स्ट्रक्चर है, आपके गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है,
जिसके ऊपर आपका स्टेशन मशीनरी काम करता है, वो जो पूरी राज्य व्यवस्था है उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो सब पोर्शन रहता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से वर्क करती है, ये सभी बातें आपको जनरल स्टडी पेपर सेकंड में पढ़नी पड़ती है। ये जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड रहता है, एक मैक्सिमम पेपर इज डिपेंड ऑन योर करंट अफेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन मींस एवरी ईयर वो अपडेटेड हो जाते हैं, तो इसके ऊपर टोटली करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो पेपर सेकंड देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन जनरल स्टडी पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट रहता है उसमें तो हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, जो समवट अगर देखा जाए तो वो स्टैटिक रहता है, बट इसके ऊपर भी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी आ रहा है रिसेंटली 4-5 सालों से, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। आगे जब आपकी सेशन हो जाएंगे अभी नेक्स्ट 5 डेज में, जिसमें आपको रिस्पेक्टिव सर बताएंगे कि देखो प्रीलिम्स में इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किसको कैसे पढ़ना है, सभी बातें आपको हर एक स्टाफ इन देयर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव क्लास दे विल टेल यू अबाउट दैट। जो जनरल स्टडी पेपर थर्ड रहता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पेपर है, जिसमें आता है आपका इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स आता है, देन एनवायरमेंट आता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट, आपका क्लाइमेट चेंज, सभी बातें इस एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। देन साइंस एंड टेक, दिस द मींस जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस जनरल स्टडी पेपर थर्ड में आते हैं। देन जो सिक्योरिटी यानी क्या, दो तरह की सिक्योरिटी, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जैसे भारत को अगर इंटरनल सिक्योरिटी दिया जाए तो आपने देखा होगा पैरामिलिट्री जिसे कहते हैं सीएपीएफ, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, जैसे नक्सलिज्म जैसे प्रॉब्लम आते तो उसको स्टॉप करने के लिए अपनी एक इंटरनल फोर्स रहती है जिसको अपन सीआरपीएफ कहते हैं। और अगर दूसरे देशों से अपने कंट्री को बचाने के लिए वी हैव द डिफेंस सिस्टम लाइक आर्मी है, नेवी है। सो ऐसे दोनों एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ता है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको इस पेपर थर्ड में पढ़ाई करना पड़ता है। सो पेपर थर्ड में अगर देखा जाए, इकोनॉमी आता है, एनवायरमेंट आता है, साइंस टेक आता है, सिक्योरिटी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। एंड द लास्ट जो आपका जीएस पेपर फोर्थ है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है और जिसके लिए बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ती है, बट इसके लिए आपका करंट अफेयर और आपका एनालिसिस यहाँ पे चेक किया जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है इथिक्स, इसमें रहता है इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इथिक्स यानी क्या, इथिक्स यानी क्या कि इसमें आपको इट इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी, क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू हैव टू चूज कि इसमें से राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, मोरालिटी क्या रहती है, इंटीग्रिटी क्या रहती है। सो ऐसे जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है जिसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एज वेल इस पेपर में आपको जो क्वेश्चन रहते हैं वो केस स्टडी के ऊपर यानी पूछे जाते हैं, केस स्टडी के ऊपर। सो केस स्टडी में मीन्स आपको एक कोई तो भी पर्टिकुलर सिचुएशन देंगे और आपको पूछेंगे कि जैसे अभी जस्ट टेक एग्जांपल, अभी जैसे कोविड जैसी कंडीशन आ गई, तो इफ यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इफ यू सेट ऑन द चेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और ऐसी अगर क्राइसिस आता है देन व्हाट विल यू डू। सो आपकी क्या प्रायोरिटी रैंक होती है, वो ऐसे एक कंडीशन दे देंगे और आपको बताएंगे आप उसको कैसा हैंडल करेंगे। सो ऐसे जो फिलोसफी ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं जिसको आपका जो चेक करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड की जो प्रैक्टिकलिटी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। सो ये पूरे जो आइडिया जो आपके जनरल स्टडी पेपर फोर्थ में डिस्कस की जाती है। सो पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ऐसे 3। देन जीएस पेपर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी आता है एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस पेपर थर्ड में आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड जो पेपर फोर्थ रहता है जीएस पेपर 4, इसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अभी जो स्टूडेंट मींस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया है, for them this subject is somewhat उन्हें ये सीक्वेंस में भी माइंड में स्टोर करने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, बट अगर इसको आप 1-2 बार पढ़ लेते हो देन डेफिनेटली ये पूरा जो पैटर्न है आपके माइंड में ड्रिल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, सो अभी जो मैंने इस स्लाइड में आपको ये जो सब्जेक्ट दिए, दिस इज नॉट द सिलेबस और डिटेल में आता है। तो अभी एक सिलेबस का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, पूरा सिलेबस में मींस नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट विल ये आपके लिए बोरिंग हो सकता है। सो जो भी रिस्पेक्टिव स्टाफ आपको आगे जाके पढ़ाने वाले हैं वो आपको पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में उन्होंने इंडियन हेरिटेज इज देयर, कल्चर इज देयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी इज देयर। इसमें से यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री का खाली सिलेबस दिया है। हिस्ट्री में उन्होंने
ऐसे 5 पोर्शन को यहाँ पे लिखा है। इंडियन कल्चर will cover the silent features of art forms, literature and architecture from एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ओके, एंशियंट लेके मॉडर्न टाइम पे जो आर्ट फॉर्म से लिटरेचर है उसकी स्टडी इस पेपर में करनी पड़ती है, एज वेल एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी 1715 से जो आगे की हिस्ट्री है, स्पेशली आपकी जो बैटल ऑफ प्लासी कहती है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री का इनिशियल पॉइंट कहते हैं, वहां से लेके आपका जो रिसेंट तक हिस्ट्री है, उस सभी हिस्ट्री आपको यहाँ में पढ़नी पड़ती है। उसमें से जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनके क्या क्या इश्यूज है, उसको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया है, वो सभी बातें इसमें पढ़ने पड़ते हैं। आपका फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना पड़ता है, उसके वेरियस स्टेजेस पढ़ने पड़ते हैं, उसमें से किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, तो उस कंट्रीब्यूटर का नाम, उनके कंट्रीब्यूशन का नाम, हर एक बातों को अच्छी तरह से स्टडी की जाती है आपके हिस्ट्री के पोर्शन में। देन आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद में क्या क्या पॉलिसी थी, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। देन यू हैव द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच इंक्लूड द 18th सेंचुरी से, इसमें फिर आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, सभी बातें आते हैं। सो अगर इफ यू ऑब्जर्व दिस स्लाइड वेरी केयरफुली, वी कैन से दैट दिस इज द ट्रू सिलेबस ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ऐसा सिलेबस आपके प्रीलिम्स में मेंशन नहीं किया है, एंड दैट इज द रीजन आई ड्रॉ वन डायग्राम। मैंने कहा था इन प्रीलिम्स जो चक्रव्यूह मॉडल मैंने आपको समझाया था कि प्रीलिम्स से जनरली सभी लोग प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, बट देयर इज अ नो सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। सिलेबस कहाँ पे आता है? मेंस में आता है, एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज इन मेंस देयर इज अ डिटेल्ड सिलेबस। और जब तक आपको, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, तो साइंस एंड टेक इज वेरी ह्यूमंगस सब्जेक्ट्स। उसमें क्या क्या पढ़ोगे? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ऐसे बहुत सब साइंस सब्जेक्ट उसमें आते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको इसमें से क्या पढ़े, बट उसमें से अगर ऐसा क्लियर कट में मेंशन कर दो, देन इट विल बिकम इजी फॉर द एस्पिरेंट्स कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखोगे मेंस में हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसा डिटेल सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया रहता है। ओके, सो ये जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है, इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है, वो यहाँ पे इतने 5 पॉइंट है। दीज आर पॉइंट्स व्हिच रिलेटेड टू द हिस्ट्री। देन यू हैव द पॉइंट्स व्हिच रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड यू नो दिस इज द सिलेबस। और ये जो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स यूपीएससी का जो मेंस का इंडियन सोसाइटी का जो वेटेज है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, जिसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू। सो ये जो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके लिए यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी, यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी फ्रॉम लास्ट 20 to 25 ईयर्स। सो आप इस सोसाइटी में लास्ट 25 साल से रहे हो, आपने इस सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है, यू नो दैट विच आर द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक हाउस हो गया, लाइक फैमिली हो गया, जो इस सोसाइटी में फंक्शन करते हैं। सो यू ऑब्जर्व दिस सोसाइटी एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देन देयर इज वन subsection called as effects of globalization on Indian society, and last one is the social empowerment, communalism, regionalism and सेक्युलरिज्म। ऐसे जो कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज है जिसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है सोसाइटी के अंडर। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इसके लिए अगर इसको आप अच्छी तरह से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी को ऑप्शनल लेते, उनका तो ये पूरा सिलेबस कवर मींस उसका तो ये पूरा पोर्शन उनके ऑप्शन में कवर किया ही जाता है। बट यू नो फॉर ओवरऑल थिंग्स मींस अगर आपको ऐसे में दिया जाए तो यू नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके सोसाइटी की बेसिक आइडिया भी आती है, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। और जो जीएस पेपर फर्स्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इस जीएस पेपर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, जिसके 5 टॉपिक सिलेबस के मैंने आपको बताए। देन यू हैव द सोसाइटी, जिसके 4 टॉपिक, एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पे उन्होंने ज्योग्राफी का अच्छी तरह से डिटेल में सिलेबस किया है। सो रिस्पेक्टिव जो स्टाफ रहेंगे वो आपको इसके रिगार्डिंग अच्छी तरह से गाइडेंस कर देंगे। ओके, सो वी विल नॉट डिस्कस द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हियर, बट जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो सिलेबस है, ओके, ये जो सिलेबस है, इज इट द ट्रू सिलेबस? इज इट अगर मैं पढ़ता हूँ कि साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अभी साइलेंट फीचर्स, तो साइलेंट यानी क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अभी फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत डिफरेंट इंपोर्टेंट साइलेंट फीचर हो सकते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं कि खाली 4 देयर आर ओनली 4 और द 5
साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे अनकाउंटेड है, बट उसमें से आपको शॉर्टेड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सपोज मीन्स व्हाट मुझे क्या पॉइंट बनाना है, सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव टू ईट वन एलिफेंट, सो हाउ यू कैन ईट वन एलिफेंट, इतने बड़े एनिमल को अगर आपको खाना है, सो इट इज ह्यूमन टास्क, इट रिक्वायर सो मच एनर्जी। सो इन दिस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, वी जस्ट कट इट डाउन दैट एलिफेंट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, और उसमें से अगर एक पीस को अपन खाते हैं, सो इट बिकम वेरी इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट दैट होल एलिफेंट एज ए मीन्स होल एंटिटी। सो यही अप्रोच आप आपके सिलेबस में लगाओगे, ये अप्रोच आप कहाँ पे लगाओगे, आपके सिलेबस में। सो ये जो अभी यूपीएससी का सिलेबस है, इफ you fragment this syllabus into small pieces, then and then you can store that all the syllabus in your mind very well, means very organized way, and it is very easy for anybody to remember that syllabus thoroughly. Okay, so ये जो एक जो बात है जिसको कहते हैं the art of disintegration of syllabus, the art of disintegration of syllabus, यानी syllabus यानी क्या, जैसे कि I will just give one demo to you कि syllabus को किस तरह अपन disintegrate करते हैं। तो देखो इंडियन सोसाइटी को 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन में डिवाइड किया गया है, और उसमें से देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री देयर, मिडाइवल हिस्ट्री देयर एंड मॉडर्न हिस्ट्री देयर, राइट। एंशिएंट यानी क्या, प्राचीन भारत के इतिहास है, आपके मध्ययुगीन भारत के इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है। अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें these are the we can say the total 7 पोर्शन जो आपको स्टडी करने पड़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड रहता है, हड़प्पन रहता है, वैदिक रहता है, ये सभी बातें आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें से भी आपको ऐसा स्टडी करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में या फिर महाजनपदा का पीरियड हो, या फिर मौर्यन जो एम्पायर था उसका पीरियड हो, या फिर गुप्ता जो किंग थे उनका पीरियड हो, उनके टाइम पे रिलीजन कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसे काम करती थी, कल्चर कैसे काम करता था, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे था, इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या क्या थे, हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या थे, ये जो हर एक पोर्शन है ये आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ता है। सो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा मेरा हिस्ट्री का, उसमें मैं आपको ये डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से डीप वे में समझा दूंगा, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट ऑल दैट स्टफ हियर। ओके, now what does UPSC expect from you? And it is very important diagram. You should drill these thoughts in your mind. If you are able to understand this diagram very thoroughly, take my word, आपका प्रिपरेशन यही से स्टार्ट हो जाता है। This is the slide which tell you कि what UPSC expect from you. Okay, so just discuss करते हैं one by one. The first stage is prelims. Okay, prelims में क्या बातें चाहिए आपको? You need proper information. You need information here with accuracy. Okay, prelims में क्या चाहिए? You need a very information. What is meant by information? आप अगर if you heard about the word information and data, कि यहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट नहीं करना है। ओके, यू नीड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी क्या है? रिलेवेंट डेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इसेंशियल है, एंड वो इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए? एक्यूरेट चाहिए। सो इफ एनीबॉडी वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आपके माइंड में स्टोर करना पड़ता है, एंड दैट टू इन वेरी एक्यूरेसी। Okay, so if you are to crack the prelims examination, the one thing that you should know, that is we can say the bedrock of prelims is the intense practice of question and answer. The intense practice of question and answer. Prelims, I already told you, prelims is all about the objective. यहाँ पे MCQs क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक राइट को सिलेक्ट करना पड़ता है और बाकी को एलिमिनेट करना पड़ता है। So how you can eliminate the wrong question, or how you can select the right question? आप कब सिलेक्ट करोगे? If you have the proper information with you, whether it is your history, whether it is your geography or society, anything is there. If you have the proper information, then you can means you can crack the prelims examination here. And the success key for the prelims is just practice and practice and practice of क्वेश्चन पेपर। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, then you can crack the prelims examination. So practice is the one thing जो आपके prelims के लिए चाहिए। The second important stage is your mains examination. What is mains is all about?
Mains is all about the knowledge. Now there is a very big difference between information and knowledge. Okay, information और knowledge में there is a big difference है. क्या difference है? I will show you with the help of an example on next slide. But just understand here कि this mains examination is all about knowledge. What is knowledge? जब आप information को process करते हो, okay, when you process the information और उससे आप एक conclusion निकालते हो, उससे आप एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो, दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पर्सपेक्टिव, उसको कहते हैं नॉलेज, उसको कहते हैं नॉलेज. ओके, सो फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एग्जांपल कि you know that कि इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. नाउ this is the information that you know in your mind, but why Delhi is the capital of India? That is the knowledge. What means why means last पूरे अभी आप देखते from last 70 years why New Delhi become the capital of India? क्यों अभी तक उसको change नहीं किया? Is there any historical event behind that? What are the reason behind that? So you know that all things are contained in your knowledge portion. Okay, so in mains examination, the examiner want knowledge from your side, as well as the most important, whatever the information or knowledge you have to express that knowledge here, because जो मेंस एग्जामिनेशन रहती है दैट इज इन रिटन फॉर्म. यू हैव टू नो, यहाँ पे आपको आंसर लिखने पड़ते हैं. सो इफ यू आर एबल नो to give the clear cut expression that came in your mind, then this examination is over. So this main stage is all about your presentation skill. In prelims you need the intense practice of question MCQs. In mains examination you need the presentation skill. Okay, और ये जो presentation skill है एक दिन में नहीं आती. You have to read, अगर आप if you read the newspaper thoroughly for 1 year, if you read the basic NCERT books for 1 year, then and then you can able to represent the clear cut thoughts in your simple language से आप उसको present कर सकते हो. Okay, so I will just give you the idea कि ये जो information है, ये जो accuracy है, इसको means these all are the theoretical words, but I will give the demo on the next slide. फिर with the help of that slide you will get what is mean by information, knowledge, और जो critical analysis कहते हैं कि you have to knowledge कब आता है आपको? Knowledge तब आता है आपको जब आप आपकी information को एनालाइज करते हो, जब आप उसको इवेल्युएट करते हैं, आप देखते हो कि उसमें क्या लैकुनाज है, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए. सो दैट होल पोर्शन, दैट होल प्रोसेसिंग इज द पार्ट ऑफ योर नॉलेज. ओके, सो अगर देखा जाए इन प्रीलिम्स you need a intense practice. In mains examination you need a presentation skill. At the last stage of civil services examination is your interview, which is all about your personality. Personality means what? This third stage is all about you, who you are, what are the values which cherish in your mind. आप कौन हो, आपको कौन सी वैल्यू मींस आपके माइंड में है, whether you understand Indian society or not, what is your point of view regarding Indian society. वो जो आपका point of view वो communal base से है या secular base से है, whether you have the integrated approach in your mind or not, आप disintegrated base से society को देखते हो क्या. So who you are. So this third stage is all about you. आप कौन होते हैं. If you अगर आप देखोगे in my interview they ask not only in my interview but in anybody's interview, जो भी question panel आपको पूछती होती ना, that is very simple. उसके लिए you don't need any technological, you don't need that technocratic knowledge here. You need very simple. They will just ask you why you are preparing for this examination, what is your idea of Indian society. You belong from means they ask me, means I belong from Vidarbha, so you belong from Vidarbha, so what are the major problem of Vidarbha region. So what they ask in your interview is कि आप कहाँ से आते हो, उस रीजन के क्या प्रॉब्लम है. इफ यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दे जस्ट वांट टू चेक कि whether you have the problem solving attitude or not, or खाली you just discuss the problem. So they just check कि who you are really. So this third stage is all about your personality. So अगर देखा जाए प्रीलिम्स में प्रैक्टिस, मेंस में प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू में योर पर्सनैलिटी. सो ये जो प्रीलिम्स, ये जो प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी का मॉडल है, इसको कहते हैं 3P मॉडल. एंड यू कैन अचीव दिस 3P मॉडल only and only when you maintain the patience and persistency throughout your preparation phase. These are very important, guys. Sometimes क्या होता है कि
Just wait, there are some students sound not clear. Okay. There are some students उन्हें शायद means मेरा voice clear नहीं आ रहा है. So there is a one request from my side कि there is a no technical issue from my all technical support team. हमारे यहाँ से नेट का स्पीड भी अच्छा है. सो अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन यू जस्ट डू वन थिंग, आप आपका जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कीजिए या फिर आप एक और फिर से उसको रिकनेक्ट कीजिए, आपको मेरा वॉइस क्लियर कट आ जाएगा. या फिर मीन्स आप खाली आप मीन्स जहाँ पे भी हो वहाँ पे खाली मीन्स आपका कनेक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, वहाँ पे रेंज होती है या नहीं उसको आप चेक करो. बट देर इज अ नो टेक्निकल इश्यूज फ्रॉम माई साइड. ओके, I am using the Reliance Jio Fiber, so optical fiber cable I am using. So यहाँ पे तो generally कोई technical issue नहीं आता है. But still अगर कोई issue आता है from my side, then I don't have any options. But I will definitely call to Mr. Mukesh Ambani की ऐसा problem आ रहा है. So let it be. So this is all about, these are the things जो UPSC आपसे expect करती है. Okay, in prelims they expect accuracy from your side, in mains they expect expression from your side, in interview they expect the clarity about yourself. And if you have the clarity about yourself, then and then you can crack this examination. Now the thing is कि this is the 3P model, but how we can achieve this 3P model? So you should be very patience mode and with very persistency in your preparation. बहुत बार क्या होता है, sometimes we heard some toppers and we realize that no, we will start our preparation with energy. Open next day morning उठते और अपना preparation start करते थे, but एक दो दिन अपनी preparation बहुत अच्छी तरह से workout होती है, and suddenly the third day or the fourth day we realize that कि अपनी energy कम होते जा रही है. अब we realize that no, this is very tough exam, how you can crack this examination. Every year 5 lakhs people appear for this examination, and out of that 5 lakhs only 1000 are selected. तो whether we have that capability to crack this examination or not, ऐसे बहुत सारे negative thoughts आपके mind में definitely आने वाले हैं, definitely आते ही है. It is very difficult कि आप 24/7 इस पूरे preparation के phase में positive charge रहोगे, ऐसा नहीं होता है. आपको ऐसे problem आने वाले हैं, but still when such type of problem arises in your mind, you have to be very calm, you have to be very cool, and you have to just say to yourself that yeah, you have the ability and you will prove that ability through your actions. Okay, and this is the difference between the layman or layman, and this is the difference between aam aadmi and the true aristocrat. Aristocrat यानी क्या means the person who have the capability to manage the power. Okay, power को manage करने की जो capability वो होती है aristocrat के पास. So all that bureaucratic section, they have the power, and that power come with responsibility. So if you are able to manage with power, then you are the true aristocrats. So this examination is all about your persistency. You have to prepare throughout the जब तक आपका means आप this is the first day of your preparation. So जब तक आपको success नहीं मिलता है, you should be very patient and very persistent in your preparation. Okay, so these are the things which UPSC expect from you in all these 3 stages. But now I will give you one example कि with the help of that example आपको idea आ जाएंगे what is information, what is knowledge, and how you can understand correlate that knowledge to develop your point of view. Okay, so example of 3P model. Just understand this diagram very thoroughly. Okay, and with the help of this examination, I will tell you what is the information which needed you in prelims, what is the critical analysis point of view which needed you in mains examination, जिससे आपको understand हो जाए, जिससे आपका knowledge बढ़ जाए, जिससे उस knowledge को information को आप express किए जाए, and how you can build your own perspective after reading that all information. So this is the example of 3P model. क्या रहता है 3P model? Just understand here. Okay, I don't know, but there is one very famous battle called as Battle of Panipat. There are 3 important battle of Panipat happen in the history. The first battle happened in 1726. The first battle of Panipat happened in 1526 between Lodhi
वर्सेस बाबर. Okay, Lodhi versus Babur. Okay, Lodhi versus Babur. Lodhi means Ibrahim Lodhi is the last, we can say, the Delhi Sultanate, and Babur is the first Mughal Sultanate. So क्या होता है, the result of first battle of Panipat is the victory of Babur, and the victory of Babur indicate that this is the, we can say, the first battle of Panipat is the, we can say, the initial point of the foundation of Mughal Empire in India. जो मुगल का साम्राज्य है उसको इंडिया में स्थापन कहां से किया था? फ्रॉम दिस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सो इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस बैटल. सो फर्स्ट बैटल होती है जो इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर. इसमें लोधी डिफीट हो जाता है, बाबर को विक्ट्री मिलती है. जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है वो होती है इन 1556. ओके, आफ्टर द 30 इयर्स, 30 सालों के बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है. ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है ये होती है बिटवीन वन किंग हुज नेम इज हेमू वर्सेस द ग्रेट अकबर. ओके, सो द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हैपन बिटवीन हेमू, उसी को कहते हैं हेमू विक्रमादित्य. सो हेमू वर्सेस अकबर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है. इसमें हेमू किंग डिफीट हो जाता है एंड अकबर किंग जीत जाता है. And the third and very important battle of Panipat is third battle of Panipat, जिसके ऊपर recently movie भी आया था. If you remember, एक movie आया था पानीपत करके. Okay, so third battle of Panipat किसके बीच में हुई थी? This battle happened between मोहम्मद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा. मोहम्मद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा. he is the foreign person जो इंडिया में आता है and he is trying to he plunder New Delhi and he attacked India, और he want to establish the dominance on India. but इस बैटल में क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह अब्दाली जीत जाता है एंड मराठा लॉस्ट दिस बैटल. ओके, सो जब आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैटल ऑफ पानीपत स्टडी करोगे, द थिंग दैट रिमेंबर इन योर माइंड इज फर्स्ट बैटल किसके बीच में हुई थी, कौन से साल में हुई थी, उसमें कौन जीता एंड कौन हारा. ओके, सो एक ये जो दिस 3 पॉइंट व्हाट इंडिकेट, these are the information. और इस इंफॉर्मेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अभी जो रिस्पेक्टिव स्टाफ इसके आगे आपके लेक्चर ले लेंगे तो सभी स्टाफ आपको ये बात बताएंगे कि आपको एक एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ती है, और सभी लोग यू विल स्टार्ट योर एनसीईआरटी, आप उसको एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट कर दोगे. बट what you will consider कि information is nothing but the collection of information, and this is totally wrong idea. यही होता है अपना. अभी तक आपने जो पढ़ाई की है, अपना मकसद ये रहता है कि अपन को वेदर आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की या फिर ग्रेजुएशन तक की कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, आई जस्ट वांट टू क्रैक दैट रिस्पेक्टिव एग्जाम. ओके, बट हियर आपको क्या करना है, हियर यू डोंट मींस, यहाँ पे आपको नॉट ओनली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बट उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करना है, और उस नॉलेज से आपको खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का एक दृष्टिकोण डेवलप करना है. सो इसका अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. सो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? इन 1526 बिटवीन लोधी वर्सेस बाबर. कौन जीता था? बाबर जीता था एंड लोधी हारा था. एंड इस बैटल का आउटपुट क्या है? दिस बैटल ने इंडिकेट किया, दिस इज द, वी कैन से, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुगल एम्पायर. जो मुगल का साम्राज्य है वो भारत में स्टार्टेड हुआ फ्रॉम दिस बैटल. ये बैटल ने क्या किया, जो इब्राहिम लोधी था, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, जब मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, एट दैट टाइम आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस इवेंट वेरी थरोली. सो this is the information. Second battle of Panipat 1556 between Hemu versus Akbar. Third battle of Panipat Muhammad Shah Abdali versus Maratha. Now this is the information. Now how you can transform this information into knowledge? See, if any of you, अगर आप में से किसी ने यूपीएससी के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया होगा और किसी ने अगर आपने कभी यूपीएससी के क्वेश्चन को देखा होगा, देन आपने शायद एक क्वेश्चन को इस एग्जाम के रिगार्डिंग देखा होगा जो आपके मेंस में भी पूछा था. सो प्रीलिम्स में आपको क्या पूछेंगे, दे विल आस्क यू कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी. बट इन मेंस एग्जामिनेशन दे विल आस्क यू कि
why all these three important battle of Panipat happen only in Panipat? What is the speciality of that Panipat? There is one question I think that asked in 2015 or 16 mains examination, and that question is ki the third battle of Panipat was 14-17-61. This is the one fact जो उन्होंने दी थी. And next उन्होंने पूछा था कि why were so many empire shaking battles? Why were so many empire shaking battles fought at Panipat? Fought at Panipat. So इंफॉर्मेशन आपके पास है कि तीनों बैटल यहाँ पे हुई थी, किसके बीच में हुई थी और कौन जीता था. बट इन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू नीड कि पानीपत में तीनों बैटल क्यों हुई थी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पानीपत. ओके, सो इससे क्या होता, just wait, there is one person who has some problem here. I think जितने भी लोग connected है, if you have any technical problem, chat section में we share one number, you can directly call to that number. Our technical team आपको उस issue को कैसे resolve करने के बारे में they will give solution to you. Okay, so instead of doing chatting here, you can directly call them. इससे आपका भी time बच सकता है. No, you can easily resolve in आप lecture को continue कर सकते हैं. Okay, so in prelims what you need a information, कब हुआ था, किसके साथ हुआ था. In mains आपको क्यों हुआ था, that why battle happen only in Panipat. मीन्स मैंने इसको पहले भी आपको पूछा था कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट व्हाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. वो जो व्हाई बताता है ना, वो व्हाई बताता है कि वेदर यू हैव द नॉलेज, कि क्यों व्हाई हैपन इन पानीपत. अगर आप देखोगे ये जो पानीपत है, आई विल जस्ट गिव आइडिया कि क्यों ये तीनों इंपॉर्टेंट पानीपत के प्लेस में हो गई थी. अगर इफ यू नो द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पानीपत जनरली आपका जो हरियाणा है उसी के बीच में आता है. उसका जो नॉर्दर्न एरिया है, पानीपत के नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो एरिया है, दिस इज द एरिया जिसमें इंडस करके एक रिवर है. ओके, इंडिया जिसको अपन सिंधु नदी भी कहते हैं. सो ये जो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, उसका पूरा प्लेन यहाँ पे आता है. और इस पानीपत के सदर्न डायरेक्शन में ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो हो जाती है, उसको कहते हैं गंगा. सो गंगा रिवर का प्लेन यहाँ पे आ जाता है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ पानीपत इज नंबर वन इज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन. एक तो ये जो पानीपत का एरिया ना, ये दोनों प्लेन के बीच में है. तो इससे क्या हो रहा है, दिस बोथ रीजन आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर, क्योंकि यहाँ दोनों के पास वाटर अवेलेबल है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होती है. सो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होती है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड थिंग, ये जो पानीपत है विच इज वेरी क्लोज टू न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली से क्लोज है, तो इससे क्या होगा, जो भी न्यू दिल्ली का रूरल रहता है ना, वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर खुद का राज करता है. एंड दिस इज द वी कैन से द फैक्ट जो पूरे थ्रू आउट मेडवेल और जो एंशिएंट हिस्ट्री उसमें दिखाते कि जिस बंदे ने दिल्ली के ऊपर राज किया उसने पूरे भारत के ऊपर राज कर दिया. सो पानीपत की जो प्रॉक्सिमिटी है विथ न्यू दिल्ली, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की मैक्सिमम बैटल कहाँ पे हो रही है, पानीपत पे हो रही है. द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, पानीपत इज इंपॉर्टेंट. सेकंड इज यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है. नंबर थर्ड, ये जो रीजन है पानीपत का, जो रीजन है ये कहाँ पे आता है, पूरे प्लेन के ऊपर आता है. सो इसका जो टेरेन है, इसका जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, जो टेरेन है, यहाँ पे हिल वगैरह कम है, ये टोटली प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया यानी यहाँ पे एक ग्राउंड है. सो इस प्लेन ग्राउंड के ऊपर बैटल करना, वॉर करना इजी जाता है एज कम्पेयर टू ऑन माउंटेन. सो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पानीपत इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ व्यू जो इसको अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये जो पानीपत के आजू बाजू के एरिया है, उस एरिया में एज कम्पेयर टू पानीपत बारिश जो है ना पानीपत में कम होती है. अगर इफ यू नो द क्लाइमेटिक रीजन बिहाइंड पानीपत में जो मानसून का वाटर आता है उसका जो परसेंटेज होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी का रीजन. सो यहाँ पे आप देखोगे कि व्हाई बैटल सभी पानीपत पे क्यों हो रही, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, because of economical reason, because of climatic region, because of geographical region. So ये जो different perspective आप इस information से निकाल रहे हो, that perspective are nothing but the knowledge. और यही knowledge
यही नॉलेज आपका कहाँ पे चेक किया जाता है? यही नॉलेज चेक किया जाता है आपका इन योर मेंस एग्जामिनेशन, इन योर मेंस एग्जामिनेशन। सो जस्ट अंडरस्टैंड, प्रीलिम्स में वो क्या पूछेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी, कब हुई थी और किसके साथ हुई थी और कौन जीता था। इन मेंस में वो क्या पूछेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत व्हाई बैटल, व्हाई इंपॉर्टेंट मींस, जो क्वेश्चन उन्होंने मेंस में पूछा था कि व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत, पानीपत में क्यों बैटल हुई थी। तो इससे क्या दिखा रहा है, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से आप क्या कर रहे हैं, खुद का एक ओपिनियन बना रहे हैं। ओके, सो आपको अभी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में एक मींस डिफरेंशिएट आप कर पा रहे होंगे। नाउ द थर्ड फेज इज in interview what they will ask you ki whether your name xyz, so they will ask you what is the lesson that you learn from the battle of panipat। okay, third battle of panipat हुई थी, उसमें से वो पूछेंगे कि all the battle happened in panipat, what are the one lesson that you understood from that battle of panipat। so if you know the story क्या क्या हुई थी, I will just give you the story अबाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अहमद शाह अब्दाली। ओके, मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ओके, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा दोनों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। नाउ इफ यू रिमेंबर इन दैट पीरियड, जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, जस्ट अंडरस्टैंड ये जो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे ये जो पूरा इंडिया है, उस पूरे रीजन के ऊपर देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ मराठा। ओके, मराठा का जो साम्राज्य है उनका डोमिनेंस पूरे एरिया में था। बट देयर इज वन पर्सन हु केम टू इंडिया वाया खैबर पास एंड ही मींस यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है, और इतना बड़ा एम्पायर होके भी मराठा लॉस दिस बैटल, वो इस बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं। एंड द मेन रीजन बिहाइंड द लॉस इज their lack of political unity। उनमें क्या रहती है, यूनिटी नहीं रहती है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रहती है। सो इफ ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू अंडरस्टैंड द मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी कि इफ यू आर अ बिग, you have a big empire but still if you lack in unity, अगर आप में एकता नहीं है ना, then you will face the problem। just consider this event with today's India, 21st century में just compare this event with today's India। now you know that recently China, China, because of clashes on Ladakh border, there is a tussle going on between India versus China, and in that tussle अपने जो कुछ soldiers थे, they become martyred in that thing, वो शहीद हो गए। बट जैसे ही ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, all the people in India, though they belong from different religion, though they belong from different caste, though they belong from different region, we came together as a Indian। so we united, we become the one, we become the one voice for the whole India। ये जो पॉलिटिकल यूनिटी अपने इंडिया में आती है, ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है द ट्रू पावर ऑफ इंडिया। सो ये जो ट्रू पावर है, दिस इज द पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया that which lacked by Maratha people in third battle of Panipat, and because of that they lost their battle। okay, so यहाँ पे means I give you the three ideas, मैंने आपको तीन इवेंट बताए कि बैटल कब हुई थी, क्यों उस जगह हुई थी, एंड व्हाट आर द लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस बैटल। सो ये जो तीनों बातें ना, इंफॉर्मेशन, knowledge and understanding, these are the 3P models, these are the three, we can say, the ideas। मैंने आपको क्या बताया, जब आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो आप रीडिंग करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगी इंफॉर्मेशन, आपके पास आ जाएंगी इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड करोगे, एनालिसिस करोगे, और उसका आउटपुट आ जाएगा आपका नॉलेज। और उस नॉलेज को जब आप अच्छी तरह से समझोगे, then with the help of that knowledge you will you will able to develop your own perspective। और यही जो तीनों स्टेज है ना, that is the requirement of UPSC। this is the thing जो UPSC आपसे एक्सपेक्ट करती है। and if you are able to inculcate three idea, 3P model in throughout your preparation, take my word, this game means it is not a big deal कि इस एग्जाम को आपको means क्रैक करने के लिए means ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। you can crack this exam within your first stroke।
अगर आप इस एग्जामिनेशन के डिमांड को अच्छी तरह से समझते हो और उसके ऊपर आप वर्कआउट करते हो तो ओके। सो दिस इज द 3P मॉडल, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उस इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है और उस नॉलेज को आपको एक्सप्रेस करना है इन योर मेंस में, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन स्किल मैटर करता है। एंड दैट द थर्ड सेक्शन इज ऑल अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट your point of view, about your perspective. Okay, so this is the true demand of this examination. So I will just means अगर आप इस एग्जाम इस स्लाइड को अच्छी तरह से समझते हो ना, देन आपकी यूपीएससी का जो मोस्ट ऑफ द क्रक्स है वो यही बात सिखाता है आपको। आपका जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को ऐसे ही शॉर्टेड डाउन करना है और उस इवेंट से आपको सीखना है। ओके, यू नो आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, और व्हाट इज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। अगर आप देखोगे व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स स्टोरी। हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री में क्या रहता है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टोरी। देयर आर नंबर ऑफ स्टोरी इन द हिस्ट्री, बट इन अगर आप देखोगे मीन्स इन योर चाइल्डहुड, अपनी ग्रैनी जो रहती थी ऑलवेज यूज्ड टू से सम स्टोरीज, एंड एवरी स्टोरी हैज सम मोरल मैसेज, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज फ्रॉम दैट स्टोरी, देन वो मैसेज की जो स्टोरी है, वो जो मोरल मैसेज है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पर्सपेक्टिव को क्या बनाता है, डेवलप करता है। Just wait, there are some students, they have I think some problem. I think there is one there were some student, they have some problem, they ask me sir कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई थी या फिर मोहम्मद शाह। देखो there are two means अहमद शाह मीन्स आप देखोगे there is a अहमद शाह मीन्स उसको आप बोलते, कोई बुक्स में उसको लिखा है कि मोहम्मद शाह अब्दाली, और ये जो किसी ने लिखा है यहाँ पे कि मोहम्मद शाह रंगीला डिफरेंट है एंड अहमद शाह इज डिफरेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मीन्स जो मीन्स अहमद शाह। ओके, वी विल डू वन थिंग, जो भी डाउट्स है आपके उसको एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आपको बता दूंगा कि मीन्स जो भी आपके डाउट है, अदरवाइज बाकी के स्टूडेंट को अभी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3P मॉडल। यहाँ पे आपको रीड करना है, आपको मीन्स वी विल टेल यू कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस स्टडी को आपको मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आप करोगे उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, अंडरस्टैंड करना है और खुद के पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है। एंड इफ यू एबल टू यू नो इनकलकेट दिस 3P मॉडल इन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, देन यू नो दिस गेम इज नॉट यू नो टफ फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर आप देखोगे these were the years 2018, 17, 16, 15, 14, 13. These are the years and these are the toppers of that particular year. Okay, 2018 recently the Kanish Katare are the topper, and the main reason जो ये जो स्लाइड दिखाने के पीछे मेरा जो मेन रीजन था, that is just observe the marks of optional paper. Okay, these are the name of toppers, उनके ऐसे मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं। उनके जो जीएस मार्क्स है, जीएस यानी टोटल, अगर आप देखोगे जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं, 1 पेपर ऑफ 250 मार्क्स मींस टोटल हो गया आपके थाउजेंड्स मार्क्स। थाउजेंड्स में से उनको इतने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिखा है एंड दिस आर द मार्क्स व्हिच दे गेट फ्रॉम ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल टोटल 500 का रहता है, आउट ऑफ 500 उनको इतने मार्क्स मिले हैं एंड दिस इज द मार्क्स जो उनके पर्सनैलिटी टेस्ट में जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें उनको मिले हैं। इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं। ओके, so don't compare the marks of okay 2018 के टॉपर के मार्क को 2017 के टॉपर के साथ मत कंपेयर कीजिए, because you know what happen every year यूपीएससी क्या करती है, you know they sometimes जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है या पेपर चेकिंग का पैटर्न रहता है वो समटाइम वेरी कर जाता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। so don't compare the marks of topper from each year। कौन सी बात आप इस पूरे टेबल में ऑब्जर्व करो, that is how they get marks in their optional subject. Kanish Katare, whose optional is mathematics, got 361 marks. Anudit Duri Shetty got 318 marks, anthropology optional.
Kannada literature 331, political science Tina Dabi 299 marks, Ira Single ma'am geography 205 305 marks, and Gaurav Agrawal optional economics 296 marks. The one common thing, एक अगर आप देखोगे इन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो वन कॉमन लाइन जो उनके पूरे ऑप्शनल के मार्क्स से निकाली जाती है, दैट इज जो भी एस्पिरेंट हु गेट 300 मार्क्स, 300 प्लस मार्क्स जिन्हें भी ऑप्शनल में मिल जाते हैं, देन ब्लाइंडली कंसिडर करो कि आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का कॉल है, यू हैव द इंटरव्यू कॉल। ये और इंटरव्यू जब भी 300 प्लस मार्क आपके ऑप्शन में आते हैं, देन आपको 300 मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ऑप्शनल में 300 मार्क्स कैसे लाना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी मींस रहनी चाहिए, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये स्लाइड आपको क्या दिखाती है, द वेटेज ऑफ ऑप्शनल। जो ये पूरे जो टॉपर है, अगर आप देखोगे 2018 के जो भी फर्स्ट टू 10 जो भी टॉपर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड टू 10 मार्क्स, सभी टॉपर के आप मार्क देखते हो, स्पेशली ऑफ द ऑप्शनल, उनको भी 300 प्लस ही मार्क आते हैं इन एन एवरेज। नाउ ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, और ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ऑप्शनल का, इसको आपको जल्द से जल्द सिलेक्ट करना पड़ता है, जल्द से जल्द सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज होती है, उसके लिए आपको बाकी के सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर इफ सम ऑफ एस्पिरेंट जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, एंड इफ दे हैव द आइडिया अबाउट अदर सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, सो they have the knowledge of all the subjects, now they can take the decision कि उनके लिए means optional subject कौन सा comfortable रहने वाला है। But those students, they never read any NCERT right now, then you do one thing, just start the reading NCERT books, and then you can transform फिर एक दो महीने के बाद अगर आपकी पूरी NCERT complete हो जाती है, then just discuss with our counselor and they will help you to understand what is optional and what are the ideas or what are the points which you remember while selecting the optional. Okay, बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं कि जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपने कौन सा ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए। there are some optional, means I don't want to demotivate any optional, but this is the, we can say, the general idea जो अभी मार्केट का अगर आप एनालिसिस करें, I will just give the idea कि suppose take example of history जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, उसमें जनरली 250 या 260 मार्क्स 260 प्लस मार्क्स लाना is somewhat difficult in history. See, I am not saying, this is not the absolute statement as such, this is a very generalistic statement. Most of the student को 260 के ऊपर हिस्ट्री में मार्क्स लाना थोड़ा कठिन जाता है, ज्योग्राफी में 250 260 मार्क्स लाना थोड़ा सा मींस इजी, बट उसके आगे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। बट जो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट है, उनको समवट इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। मीन्स अगर वो सेम स्टडी करते हैं, अगर ये तीनों मीन्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, एक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, सो अगर तीनों ने सेम स्टडी किया तो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। सो आपको कभी कभी ऑप्शनल सिलेक्ट करने के समय पे देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है जिसको कम मार्क्स मिल रहे हैं। विच ऑफ द मीन्स कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस वेरी लिमिटेड, किसका सिलेबस बहुत मीन्स क्लियर कट डिक्लेयर नहीं किया गया, और किस ऑप्शनल का कंट्रीब्यूशन आपके जनरल स्टडी के पेपर में बहुत हेल्प करता है। सो ऐसे डिफरेंट आइडियाज है जिसके ऊपर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है। एट द सेम टाइम जस्ट ऑब्जर्व द मार्क्स ऑफ एसे में 133 150 142 145। सो इन एन एवरेज अगर देखा जाए कि अगर आपको 145 प्लस आते हैं इन एसे एंड ऑप्शनल में अगर 300 प्लस आ जाते हैं ना, देन मींस ब्लाइंडली वी कैन से दैट कि यू हैव द डेफिनेटली कॉल ऑफ इंटरव्यू। और इसके लिए द कॉमन बातें रहती है, दैट इज आंसर राइटिंग। द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, जस्ट डू वन थिंग, टेक एनी क्वेश्चन पेपर और जस्ट स्टार्ट राइटिंग। और मींस
write it down anything, ancient blunt, कुछ भी लिखो, but you have to start. Sometime people consider कि no, firstly I will read all the books, then once I read all the books I will revise all of them again, and then I will start my answer writing. इतना time नहीं मिलता है. You have to you have to understand the three phases of prelims in integrated point of view, and then you can able to consolidate your pattern, जिससे आपको रिजल्ट में मार्क्स मिलते हैं. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व, अभी मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हो गया. मैथमेटिकल इज द टेक्निकल सब्जेक्ट. इसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट के वो मैथमेटिक्स करें. इसके लिए इसमें थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी होता है. बट कनिष्क कटारिया, लास्ट मींस 2018 टॉपर, he belong from IIT Bombay and he have good comfortable in mathematics, so he applied for mathematics and he got 361 in optional marks. This is the thing, because of his optional he is topper. If you observe his GS study marks, जो भी 1 to 10 टॉपर है ना 2018 के, उनके GS के जो मार्क्स है, GS के 1 and सेम ही आ जाते हैं. कुछ 5-10 मींस आगे पीछे हो जाते हैं, बट जो कॉमन बात रहती है, जो आपका रैंक डिसाइड करती है, दैट इज योर ऑप्शनल. सो व्हाट मुझे क्या पॉइंट आपको कहना है कि जस्ट डिसाइड योर ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड ट्राई टू थिंक, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो. ओके, और इफ यू नीड एनी हेल्प कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देन यू कैन डिस्कस विद अवर टेक्निकल टीम, जो आपको इसके बारे में समझा देंगे. नाउ there are different myths about this examination and I will just मैं आपको उसके बारे में just briefly कर देता हूँ. At the end I will just tell you one story that is real, और जो आपको बहुत सारी बातें बता देंगे. What are the myths about this examination? The first one is the regional language. Most of the aspirants, recently some of there are some volunteers from some NGO like Child First, UPAI and Red Cross India जो lecture को attend कर रहे हैं. उसमें से 2-3 एनजीओ के स्टूडेंट ने हमें स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, we don't have the good command on English language, but we completed our graduation from technical background, we completed our graduation from English, still we want to opt for this examination in Hindi language. And we discussed with them, and they told us that कि sir नहीं, जो भी topper आते हैं, they have very fluent English, and they completed their graduation from very primary institute. So उन्हें ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. And this is totally the myth about, means this is not the reality about this examination. अगर यूपीएससी को आपके नॉलेज से अगर इंग्लिश की कमांड चाहिए रहती, देन वो डायरेक्टली उसका एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, उसमें क्लियर कट बातें मेंशन कर देते कि दे जस्ट वांट स्टूडेंट फ्रॉम एमए इंग्लिश लिटरेचर. सो इंग्लिश का नॉलेज आपको नहीं चाहिए, मींस ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए. व्हाट दे वांट कि योर इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी बेटर देन वर्स्ट. ओके, वो वर्स्ट से बेटर होनी चाहिए आपको, यानी आपके जो बेसिक बातें रही, जो ग्रामर मिस्टेक रहती, उसको आपने ओवरकम करना चाहिए. एंड इफ यू प्रैक्टिस थरोली विदिन 2 or 3 months, उसके ऊपर आपको कमांड आ जाती है. ओके, सो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट द ओनली वन चॉइस. आप अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल नहीं, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन इन एनी अदर लैंग्वेज एज वेल. बट जो प्रीलिम्स रहेंगी वो खाली इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगी. मेंस में आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, और रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट को मार्क्स आते हैं. टेक एग्जांपल ऑफ 2017 from Jalna district. I think you heard about the Ansar Sheikh sir. Okay, he belong from very humble background. उनका खाली BA हुआ था and Bachelor of Art, and having Marathi as their English means Marathi as their medium of language, and he cracked his examination within a first row. Okay, so जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ये लेक्चर सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना, अगर वो एक इस बात को अगर उनके माइंड में ले मीन्स रखते हैं ना कि दिस एग्जामिनेशन नॉट फॉर द स्पेशलिस्ट पर्सन, इसके लिए आपको मीन्स बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए, आपको खाली एक सिंपल डिग्री चाहिए, और उस डिग्री में जो भी आप लैंग्वेज में आइडिया लिख रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए. आपको अगर जो भी आइडिया आप लिख रहे हो, मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रिटर्न, इसमें आपको हर एक बातें लिखनी पड़ती है. एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट कम इन योर माइंड, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. यहाँ पे उस लैंग्वेज को आपको जो शेक्सपियर की लैंग्वेज रहती है ना, जो बहुत क्रिटिकल रहती है पढ़ने को और समझने को, वी डोंट वांट दैट लैंग्वेज, वी डोंट वांट द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ शशि थरूर, वी जस्ट वांट द वेरी सिंपल लैंग्वेज
जो सभी को इजी फॉर अंडरस्टैंड हो और इजी फॉर मीन्स सभी को पढ़ने को और समझने को इजी हो जाए। इफ यू अगर आप में से किसी ने सुधा मूर्ति जी की बुक्स पढ़े होंगे, सो वैसी सिंपल लैंग्वेज आपको आपके आंसर राइटिंग में रहती है। या फिर इफ यू डू वन थिंग कि अगर किसी को लैंग्वेज के रिगार्डिंग डाउट रहता है ना, just read the NCERT of 6th standard. Read the NCERT of 6th standard, and if you are able to understand the 6th standard NCERT in English language, I am saying, then उतनी अगर आपको इंग्लिश आती है, then it is more than okay. उसके लिए आपको बड़ी बात बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती है, आगे जाके आपको उसको और थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा हार्डवर्किंग करना पड़ता है, बट हो जाता है। So the first myth about this examination is कि regional language में एग्जाम नहीं दे सकते। So this is not the this is the myth. The reality is कोई भी आप regional language में इसको दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, मराठी में दे सकते हो, बट खाली उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें मटेरियल अगर अवेलेबल होता है, प्रॉपर वे से गाइडेंस अगर अवेलेबल होता है, देन आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है एंड मींस दिस इज आई विल सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट कि सर मुझे इंग्लिश की थोड़ी डर लगता है, देन यू डोंट सी जस्ट केम हियर, हमारे साथ जस्ट काउंसलिंग करो एंड वी विल डेफिनेटली अश्योर यू, हम आपको रियलाइज करके देंगे कि जो इस एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत है वो आप में है, दैट पोटेंशियल यू ऑलरेडी हैव। और जब आपको रियलाइज हो जाएंगे, देन वो जो क्या बोल सकते हैं, जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अपने माइंड में आता है, न्यूनगंड आता है कि नहीं सर मेरे से नहीं हो जाएगा, एंड यू विल रियलाइज कि नहीं सर अभी मेरे से डेफिनेटली हो जाएगा। सो यू डू वन थिंग फॉर दैट, यू जस्ट यू नो हमारे जो एक्सपर्ट काउंसिल है उनके साथ आप एक टाइम लेके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनसे मिलिए, आपके सभी डाउट्स को 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द मिथ अबाउट दिस एग्जामिनेशन। सेकंड वन इज द पुअर फैमिली। ओके, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है, यू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर देयर जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वी यू नो most of the student we belong from the middle class family. Okay, we are very humble background, so sometimes some ऐसे idea रहते हैं कि you need very good connection, with the help of that connection आपको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या फिर यू नो आपको मेंस में बेनिफिट मिल जाएगा। सो जो पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं, दे कंसीडर कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपके कनेक्शन इन व्हाट आई मीन कि आपके अगर पिताजी आईएएस ऑफिसर रहते हैं, अगर आपकी मदर कोई सेक्रेटरी लेवल की उनके साथ कनेक्शन रहते हैं, दिन एंड दिन आप इस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट द रियलिटी गाइस, आई एम अगेन एंड सेइंग यू कि इस एग्जाम में आपकी फैमिली कौन से बैकग्राउंड से वो मैटर नहीं करता है, आप कौन से कॉलेज से पास आउट है वो मैटर नहीं करता, कौन से कॉलेज की आपके पास डिग्री है वो भी मैटर नहीं करता, कितने परसेंटेज आपको है वो भी मैटर नहीं करता। व्हाट this examination expect from you is whether you know the general whether you have the general idea about Indian society or not. If you have the general idea about Indian society, what are the problems which faced by the Indian society, and whether you have the solution on that problem, और उस प्रॉब्लम को अगर आप आपके जेन्युइन वे से अगर कन्विंस करोगे इन योर मेंस एंड इन इंटरव्यू, टेक माय वर्ड, no one will stop you, you can definitely crack this examination within a one stroke. So आपका जो पुअर फैमिली या जो आपका हम्बल बैकग्राउंड है, आपका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, वो आपके प्रिपरेशन के फेज में मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उस प्रॉब्लम को अगर आप ओवरकम करोगे, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आपको हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करना ही इस एग्जाम का मेन मकसद होता है, और ये जो पूरी प्रोसेस रहती है वही आपको सिखाती है। अगर फ्रॉम अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहेंगे मीन्स वो सोचते होंगे कि अभी तो यू नो दिस इज अ कोविड क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस अभी स्टडी नहीं हो जा रही है, सभी लोग घर पे है, दे डोंट हैव द प्रॉपर डिसिप्लिन विद देम, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, सोने का टाइम डिस्टर्ब हो गया, यूट्यूब के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो इससे क्या होता है, समटाइम एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है माइंड में कि यू नो वी आर नॉट मीन्स अपन को ऐसे लगता है कि अपन मार्केट से डिरेल हो गए हैं, अपन मार्केट में जो एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में अपन को नॉलेज नहीं। ऐसा क्यों फील हो जाता है? ऐसा इसलिए फील हो जाता है कि अपन खुद को एनालिसिस नहीं करते, अपन अपनी जो डिसिप्लिन है उसको कंटिन्यू करते नहीं है। सो आई विल यू नो अर्ज एवरीबॉडी कि एवरी क्राइसिस मीन्स क्राइसिस इज अ अपॉर्चुनिटी, crisis is an opportunity for the aristocrats.
crisis is the opportunity for the aristocrats. You are not the common people. You are, you are the bureaucrats. You are the aspirants. Aspirants का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी. The person who have the mission, the person who have the vision. ऐसे अगर आप हो तो आपको ये जो कोविड की क्राइसिस है इसको आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना पड़ेगा कि राइट नाउ यू आर विथ योर फैमिली, और उस कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना, मीन्स आपके पास जो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं उसके बारे में आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है. आप यू कांट एफर्ट टू थिंक अबाउट कि अभी कितना प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव द नेट कनेक्शन विद अस, अभी मेरे जो बुक्स है वो बुक्स कहाँ पे मिलेंगे, मेरी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएंगी या नहीं, आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में इजीली स्ट्राइक होते हैं, बट द योर फंक्शन इज जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए. ओके, सो जो मिथ्स है इस एग्जामिनेशन के बारे में कि आपको जो रीजनल लैंग्वेज है, आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में यू कैन अपीयर फॉर दैट दिस एग्जामिनेशन, बट द थिंग इज आप में उसको मटेरियल और मेंटर अगर अवेलेबल होते, मटेरियल मेंटर एंड मटेरियल और मेंटर अगर मिल जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, देन आपका जो भी सब्जेक्ट है वो इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है. The third myth about this examination is कि this examination, if you belong from village background, तो common लोग इस examination के लिए appear नहीं कर सकते. ऐसी बहुत सारी क्या बोल सकते एक idea अपने mind में आती है. And I just want to give the example. I think the most of the students जो इस session को attend कर रहे हो, I think they have the idea about the Nagpur city, जहाँ से अभी lecture में आपका conduct कर रहा हूँ. The commissioner of Nagpur, everybody means I think most of the students know that the Tukaram Munde sir. Okay, Tukaram Munde sir is the commissioner of Nagpur Mahanagar Palika Corporation. Okay, NMC के वो अभी miss head है. He is belong from one Marathwada district whose name is Bid. यहाँ पे बारिश अच्छी तरह से होती नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए. और जिस टाइम में उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था, आई थिंक ही क्रैक यूपीएससी इन 2005, एंड उस टाइम पे उनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 20. ही क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन हिज आई थिंक फोर्थ अटेम्प्ट में उन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था. नाउ हिज फादर इज फार्मर. His father is farmer. He don't have good, we can say good, अगर आप उनका अभी भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनके टॉक शो को देखते हो, सो उनकी जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज समटाइम्स भी कंसिडर थोड़ी ब्रोकन फॉर्म में आपको दिख सकती है. बट आपको उस वीडियो से ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपकी फ्लुएंट जो समटाइम अपन कंसिडर करते हैं कि यू नीड लैंग्वेज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपको ऐसी कमांड होना चाहिए कि समटाइम वो शेषे थ्रू वाली फीलिंग आती है, तो आपको वैसी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चाहिए. अगर आपकी सिंपल आइडिया को अगर आप अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो, देन मोर देन सफिशिएंट. सो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ तुकाराम मुंडे सर, यहाँ पे ही बिलोंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, विलेज से बिलोंग करते थे. ही मींस उनके ग्रेजुएशन तक वो कभी सिटी के प्लेस में नहीं गए थे. Still he cracked his examination in third and fifth attempt. He also faced the number of problems throughout his preparation, but he is the man of solution, and everybody is agree with that कि जस्ट उनके सामने तुम प्रॉब्लम लेके जाओ, वो उनके पास सॉल्यूशन रेडी रहता है. सो ये जो सॉल्यूशन का यानी ये जो एटीट्यूड रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड, दैट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो जब आप प्रिपेयर करोगे और पहले दिन आप डिसाइड करोगे कल मॉर्निंग से मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा, और प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले जब आप स्टार्ट करोगे, आप एक टाइम टेबल बनाओगे, बुक के अरेंजमेंट कर दोगे, एंड सडनली एक छोटा कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा और आप बोलोगे अरे यार अभी आज तो डिस्टर्ब हो गया, कल से पढ़ाई करते हैं. सो देयर इज अ नो टुमारो इन दिस प्रिपरेशन. आपका टुमारो कहीं नहीं आता है. यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस मिनट्स ऑनवर्ड्स. ओके, और अगर आप आपका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो, देन टेक माय वर्ड्स, योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट. उसके लिए आपका आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई पॉलिटिकल या कोई अच्छा कनेक्शन है या नहीं, वेदर यू हैव द गुड कमांड ऑन एनी लैंग्वेज और नॉट, ये आपके उसके बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है. देयर इज वन मोर myths about this examination की इसके लिए आपका एक एलिट सेक्शन से बिलोंग होने चाहिए. जैसे कि अगर आप देखोगे द टॉपर ऑफ
2018 के जो टॉपर है कनिष्क कटारिया, मींस उनके जो फादर थे, ही इज एक्चुअली मींस उनके पास उनका एक अच्छा डेजिग्नेशन था। ओके तो समटाइम एक परसेप्शन बन जाता है, कभी कभी अपन टॉपर को देखते हैं, उनके रैंक को देखते हैं, उनके कॉलेज के बैकग्राउंड को देखते हैं, तो अपन अपने माइंड को ऐसे लगता है कि दिस इज व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट। एक बात को आप जितना अच्छी तरह से समझोगे कि एवरी ईयर thousands people crack this examination. This means there are thousands way to crack this examination. अगर 1000 स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, मींस इसके देयर आर 1000 वे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मे बी जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इंडिया रैंक सेकंड से डिफरेंट होगा, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअलिटी। आप इस प्रोसेस में खुद को कैसा डेवलप करते हो, खुद को कैसा बनाते हो, सो उससे क्या होगा, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होंगी, उससे आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होंगे। So this examination is all about developing yourself. This examination is all about becoming the best version of yourself. And if you are able to develop your thoughts, to develop means to adopt the problem solving वाला attitude, आप एक patience से खुद को conduct करते हो, you maintain the persistency in your study, then I will say no one will stop you. जो आपको इस एग्जाम से क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके इस एग्जामिनेशन में आपको जो भी आइडिया आते हैं ना, आई विल जस्ट कंक्लूड माय सेशन विद इन 2 minutes। उसके पहले जस्ट आई विल गिव वन एग्जांपल। आई थिंक दिस इज द केस स्टडी जो तुकाराम मुंडे सर ने डिस्कस की थी वन ऑफ हिज टॉक शो। एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीन्स एक महानगर पालिका का कमिश्नर होने के नाते उन्हें जो इंक्रोचमेंट रहता है, ओके जो इंक्रोचमेंट रहता है, उस इंक्रोचमेंट को सिटी से निकालना पड़ता है। इंक्रोचमेंट जिसे अतिक्रमण कहते हैं अपन, एंड इट इज हिज ड्यूटी कि उनको उस अतिक्रमण को निकालना पड़ता है। वो एक एरिया डिसाइड करते हैं और ही पूरे बुलडोजर एंड पूरे मशीनरीज लेके वो इस एरिया में जाते हैं, लोगों को बताते हैं हमें यहाँ से अतिक्रमण निकालना है, यहाँ से जो इंक्रोचमेंट उसको निकालना है। एंड ही स्टक देयर, वो वहां पे जाते हैं और उनके इंक्रोचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। बट जिस एरिया में वो जाते थे, उस एरिया में मोस्ट ऑफ द पुअर लोग थे, बहुत हम्बल, यानी उनके पास खाने का भी यानी कुछ अरेंजमेंट नहीं था। स्टिल इंक्रोच यानी जो मींस गवर्नमेंट का जो जॉब है वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा, इंक्रोचमेंट को तो निकालना ही पड़ेगा, और उसको स्टार्ट कर देते। और फर्स्टली सडनली जैसे वो उनका बुलडोजर, उनकी मशीन जो रोड पे कंस्ट्रक्शन आता है उसको निकालने जाती है, सडनली एक 75+ ओल्ड लेडी उनके सामने आती है। ओके यानी 75 ओल्ड, और उसके पास ना उसको कोई लड़का रहता है या लड़की रहती है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। शी इज द ओनली वन मेंबर इन हर फैमिली। और उस टाइम पे तुकाराम मुंडे सर के सामने क्वेश्चन मींस अभी एक उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि शी डोंट हैव एनी प्लेस, वो कहाँ पे रहेंगी, शी डोंट हैव एनीबॉडी जो उन्हें अभी शेल्टर उन्हें सहारा दे सकता है। इन दिस कंडीशन, ऐसी जब सिचुएशन आपके माइंड में आते हैं, सो समटाइम वी कंसीडर कि अभी क्या करना चाहिए, तो समटाइम वी बिकम द इमोशनल कि यार नहीं वो बहुत पुअर सेक्शन से कैसा निकाला जाए, और समटाइम वी फेस द प्रॉब्लम जिसको कहते हैं एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा यानी इज इट गुड और इज इट बैड, यानी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्रोचमेंट अतिक्रमण को निकालना आपका फंक्शन है, बट जिस एरिया का आप निकाल रहे हो वो एरिया ऑलरेडी पुअर है, उसमें से देयर इज वन 75 प्लस ओल्ड लेडी जिसके घर को आपको निकालना है, और अगर उसको आप नहीं निकालोगे देन पूरे एरिया का इंक्रोचमेंट आप नहीं निकाल सकते, और उसी से घर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। सो इस टाइम में क्या होता है, आपके माइंड में 2 थॉट्स आते हैं। जो फर्स्ट थॉट्स आता है कि वेदर इट इज लीगल और नॉन लीगल, सो डेफिनेटली इट इज लीगल। जो सेकंड थॉट्स आता है वेदर इट इज मोरली इट इज राइट और रॉन्ग। एंड इन दैट पीरियड वो क्या करते हैं, वो उस घर को निकालते हैं। ओके वो जो ओल्ड लेडी रहती है उनके घर को उन्हें निकालना पड़ता है। सो लाइफ में क्या रहता है, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन जब आप कोई भी प्रॉब्लम देखते ना, तो उस टाइम में आपके यानी 2 बातें रहती है। एक को कहते हैं इंडिविजुअल मोरालिटी, एक को कहते हैं इंडिविजुअल मोरालिटी, यानी आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरी रहती है पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी यानी क्या, मेरे लिए जो सही है दैट डजंट मीन कि 10 लोगों के लिए वही सही है। सो एज ए ब्यूरोक्रेट आपको ये पब्लिक मोरालिटी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है।
और अगर आप इस पब्लिक मोरालिटी के बारे में आप सोच सकते हो, देन एंड देन आपको इस मींस इस थ्रू आउट प्रोसेस में आप खुद को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हो. सो द लास्ट थिंग व्हिच आई कैन जो बात मुझे आपको बतानी है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जामिनेशन आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों के प्रॉब्लम को देख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो. मिस जब ये एपिसोड हुआ था, सो उसके बाद में जो लेडी थी जो 75 प्लस ओल्ड थी, उनको थ्रू वन गवर्नमेंट स्कीम उन्होंने एक शेल्टर की अरेंजमेंट करके दी उस लेडी को, और वहां पे मीन्स उनकी एक अरेंजमेंट तुकाराम मुंडे सर ने करके दे दी. सो ही नो दैट कि अगर एक प्रॉब्लम में आप फंसे हुए तो उसको वहां से कैसे निकाल के जाए, जो पब्लिक गुड्स है, जो पब्लिक है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर कैसे अच्छी तरह से सोचा जाए. ही हैव दैट थॉट्स इन माइंड, और उस तरह से उन्होंने उस केस को कंसीडर मैनेज किया था. सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके इथिक्स के पेपर में आपको समटाइम पूछे जाते हैं. एंड दिस एग्जाम, ये जो एग्जामिनेशन है ना, मीन्स देखो एवरी पर्सन जो भी मीन्स सभी लोग आपके पेरेंट्स को देखते होंगे, आप आपके नेबरर्स को देखते होंगे, आप आपके फ्रेंड्स को देखते हैं. वी वर्क हार्ड, वी मेक मनी, कि जिससे अपन क्या करते हैं कि अपन पैसा कमाते हो, बट किसके लिए पैसा कमाते हैं? फॉर आवरसेल्फ. बट इफ यू आर एबल, इफ यू सीक मीन्स इफ यू सीक फॉर द पीपल हु नीड हेल्प फ्रॉम यू and who make their lives better from your thoughts, from your ideas, or if you are able to give smile on their face, or if you become the symbol जो if you become the sponge जो उनके यानी आजू बाजू के जो भी निगेटिविटी उसको जो एब्सॉर्ब कर सके, और जो भी पॉजिटिव मींस वाइब रहती है जिसको आप इमिट कर सकेंगे, या फिर इफ यू आर आप किसी का सहारा बन जाते, इफ यू आर एबल टू गिव डिसेंट स्माइल ऑन एनीबॉडीज फेस, देन एंड देन आपकी जो लाइफ रहती है वो आपकी लाइफ को एक मीनिंग देती है. देन एंड देन यू कैन से दैट कि आपके लाइफ को एक क्या बोल सकते हैं, एक विजन आता है, एक मिशन आ जाता है. एंड दिस एग्जामिनेशन आई विल से द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको उस पोजीशन में वो पावर देता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वेयर यू कैन बिकम द role model for the so many people, where you can become the messiah for the downtrodden, where you can become the superhero for the those section जिसको historically disadvantages problem से मींस वो जिस throughout their life जो problem में रहते हैं उनके लिए as a solution maker आप बन जाते हो. So if you are really vision कि आपको ऐसा लगता है कि no sir I have some guts in my mind कि जिसको मुझे लगता है कि I can prove myself, I can become the best version of myself, और whether you have the ideas कि सर अगर इस आइडिया को अगर if we implement this idea in our society, then definitely जो भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है उसको डे बाय डे अपन डाइल्यूट कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं, फुल स्टॉप दे सकते हैं. सो इफ यू आर सच टाइप ऑफ विजन इन योर माइंड और मिशन इन योर माइंड, आई विल से वेलकम टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ये एग्जामिनेशन को आपको पावर तो देंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी, बट सबसे ज्यादा जो बात देने वाली कि अपन समटाइम्स कहते हैं ना कि एक मीन्स लाइफ को एक मीन्स इन मराठी अगर आप देखोगे कि लाइफ को जीने का जो एक सेटिस्फेक्शन रहता है वो आपको इस एग्जाम से मिलता है. एंड दिस इज वी कैन से द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनीबॉडी. इसके लिए आपको ज्यादा टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बहुत जनरल एग्जाम रहती है. जब भी अभी इसके आगे जो भी आपके सेशन होंगे, रिस्पेक्टिव स्टाफ आपको हर एक टॉपिक बताएंगे, हर एक पैटर्न बताएंगे, आपको उसको अच्छी तरह से समझना है. There are some students कि जिनका मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन वो इस लेक्चर को कनेक्टेड नहीं हो सके, या फिर पूरे सेशन में कभी वॉइस कम ज्यादा हुई होंगी. सो व्हाट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी लेक्चर में जो बातें अपन ने डिस्कस की हो, वी विल अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब और उसकी हम लिंक आपको दे देंगे. सो इनकेस अगर कुछ पोर्शन आपने मिस किया होगा तो आप उसको फिर से सुन सकते हो, या फिर इफ यू हैव एनी डाउट, आपको ऐसे लगता है कि सर वी हैव सम डाउट्स, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. ओके, सो guys, I will just conclude here that this examination is all about to to understand who you are. आप में क्या काबिलियत है, कौन सी बातें, कौन सी आइडिया आपकी माइंड के जो इस मीन्स सोसाइटी के जो भी डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, बट उसमें से किस एटलीस्ट किसको आप मिनिमम कर सकते हो, उसके लिए अगर आपके पास कोई भी आइडिया रहती, देन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स आई थिंक
दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो भी रिस्पेक्टिव सर रहेंगे वो आपको अभी एक एक स्टेप इस एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, और एट द एंड उनके साथ आप कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन ले सकते हो। ओके, सो आई विल जस्ट आई विल जस्ट साइन आउट फ्रॉम हियर, बट इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन, आप आपका जो माइक है उसको आप ओपन कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन टू मी। Anyone have any doubt? जो एक डाउट मुझे पूछा था कि किसी ने तो भी कि सर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अहमद शाह अब्दाली करके। सो किसी ने तो भी लिखा था देयर इज वन पर्सन हुज नेम इज अहमद शाह दुरानी। सो अहमद शाह दुरानी एंड अहमद शाह अब्दाली बोथ आर द सेम पर्सन। ओके, बट किसी ने तो भी मेंशन किया था कि इज ही द मोहम्मद शाह। सो मोहम्मद शाह रंगीला इज द he is the मुगल एम्पायर थे वो। मोहम्मद शाह रंगीला इज द वी कैन से जो औरंगजेब के बाद में जो पोस्ट मुगल एम्पायर है, जिसको लेटर मुगल एम्पायर भी कहते हैं, उसमें से मोहम्मद शाह रंगीला इज द वन ऑफ द रूलर। ओके, बट अहमद शाह अब्दाली एंड अहमद शाह दुरानी these are the same name of different person. ओके, आई थिंक मेरे लेक्चर में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने शायद मोहम्मद शाह अब्दाली कहा होगा। सो मे बी मेरे मेरे आई एडमिट दैट कि मेरी मिस्टेक हो सकती है, बट द ट्रू नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी इज अहमद शाह अब्दाली, और उसे आप अहमद शाह दुरानी भी कह सकते हो। आई थिंक जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक वैशाली जी इज देयर, आई थिंक शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन मींस आपका डाउट रिजॉल्व होगा तो शायद आपका क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से एड्रेस किया है। स्टिल अगर आपको कोई डायरेक्टली मींस डाउट रहता है, देन आप आपका जो माइक है उसको ऑन करके डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, there is one person who asked me, sir, please tell when exactly I should start the mains answer writing. Okay, I think शिरीन नास ने क्वेश्चन पूछा है इसको। देखो अभी आपने कितना प्रिपेयर किया है, वी डोंट नो दैट। अगर आपका फाउंडेशन, अगर एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है उसको आपने अगर पढ़ा है, और आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक आइडिया है, तो आपने कितने पढ़ा है उसके ऊपर हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपने आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपका एक बेसिक फाउंडेशन बोल सकते हैं, अगर 3 मंथ में आप बेसिक आइडिया हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वेदर इट इज योर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इस सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर बेसिक आइडिया भी आपके माइंड में आ जाती है, देन उसके बाद में आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर उसमें से आपको ऐसे, अगर आपने इसके पहले एनसीईआरटी को पढ़ा है और अगर आपको लगता है कि सर हाँ मुझे अभी बेसिक आइडिया सभी सब्जेक्ट के बारे में, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर आंसर राइटिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको उस आंसर को इवेल्युएट करना पड़ेगा। आंसर लिखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो सर मैंने सो आंसर मैंने 10 टेस्ट पेपर्स को लिखा है मेंस में, बट उससे इम्पोर्टेंट जो बात है कि कितने क्वेश्चन पेपर को आपने एनालिसिस किया। जो भी आप आंसर राइटिंग करते हो उसमें से किसको आप एनालिसिस करते हो, वो एनालिसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है रादर देन कितना मींस क्वालिटी क्वांटिटी में आप उसको लिखते हो। सो क्वालिटेटिव अप्रोच यहाँ पे बहुत इसेंशियल है। Sumit asking ki sir, is there any faculty available for public administration? Yeah, there is a faculty available for public administration, but right now public administration जो optional subject है उसकी बैच हम अभी कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। उस ऑप्शनल को थोड़ी दिनों के बाद, जो भी फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होने के बाद
कुछ दिनों के बाद हम उसके बारे में अनाउंसमेंट कर देंगे. So if you are interest, Sumit, I think Sumit have interest in public administration, then हम आपका नाम और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको नोटेड डाउन करेंगे, और जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैच स्टार्ट हो जाएगी, our team will contact you. Is there anyone have any doubt? I think Shirin asked question, Sumit asked question, उसके पहले वैष्णवी चावड़ा asked question. I think तीनों के जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है. स्टिल अगर किसी को क्लैरिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं मिला है, then you can again ask me the question. आप आपका जो माइक है उसको भी डायरेक्टली ऑन करके मुझे डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप टाइप करके भी पूछ सकते हो. I think no one has any doubt, right? I think Vaishnavi Chawda, we can't unmute our mic. You have restricted us. Just wait a minute. I think मैंने मेरे साइड से अनम्यूट किया है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन. अगर Hello. हाँ बोलिए. So you can hear me, right? राइट. Actually, I wanted to ask you that since you said we have to refer NCERT books, या तो सर वो कौन से क्लासेस से हम स्टार्ट करें, एज इन लाइक फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवेंथ स्टैंडर्ड, टिल टेंथ आई अंडरस्टूड दैट, बट आई हैव बीन रेफरिंग फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड टिल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड NCERT. राइट. सो दिस ईयर मीन्स सिक्स स्टैंडर्ड से अगर आप एनसीईआरटी को, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. नो नीड आप फिफ्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. सिक्स स्टैंडर्ड इज मोर देन सफिशिएंट. मीन्स यहाँ से अगर आप आपका पढ़ाई स्टार्ट करते हो, दिस ईयर इज सफिशिएंट. बट जो बात मैंने कही कि रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस फेज को आप अच्छी तरह से समझ लो. मीन्स अगर आप एक ही एनसीईआरटी को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, यू विल गेट नंबर ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. बट अगर उसी लाइन को आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो ना, या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं. सो आप जो भी उस लाइन को पढ़ोगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट लाइन फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो सिक्स स्टैंडर्ड से आप आपका एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो देयर इज वन मोर थिंग, एंड आपका फोर्थ लेक्चर एक बेसिक लेक्चर होगा, जिसमें हम आपके साथ एक पीडीएफ को शेयर करने वाले, जिसमें हम आपको बताने वाले कि जो भी एनसीईआरटी है उसमें से मोस्ट एसेंशियल एनसीईआरटी कौन सी है, उसमें से भी चैप्टर मीन्स जो चैप्टर है एक एनसीईआरटी में, उस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से है, उस चैप्टर के ऊपर इसके पहले कैसे क्वेश्चन पूछे थे, उसके रिगार्डिंग एक दो डेमो हम आपको दिखा देंगे. बाकी के जो एनसीईआरटी उसको आपको विद हेल्प ऑफ दैट डेमो लेक्चर आपको समझना पड़ेगा. ओके. सो आपके फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में हम आपको दिखा देंगे कि ये एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है, किसको कैसे एड्रेस करना है. आई थिंक वैष्णवी जी आपका डाउट रिजॉल्व हुआ है. यू हैव एनी एक्स्ट्रा और कोई क्वेश्चन है आपको? Sumit is asking me, suggest me any book for public administration. See, I am faculty for Indian society and history, so I don't know the books of public administration. But we will do one thing. Sumit, you do one thing. हमारे जो ऑफिशियल नंबर है, जस्ट टेक्स्ट मैसेज कर देना कि सर आई नीड अ बुक लिस्ट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्टिव स्टाफ है वो आपको बुक लिस्ट सेंड कर देंगे. ओके. माइक इज रिस्ट्रिक्टेड. आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी रिसेंटली मुझे किसी ने तो भी क्वेश्चन किया था
दे उनका माइक ओपन है, सो ऐसा पर्टिकुलर किसी का माइक को मैंने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया है. स्टिल वैष्णवी जी, अगर आपका माइक जिस किसको और डाउट है, ओके देन. ओके, सो इफ यू कल का जो सेशन रहेगा उसके जो पूरे इंस्ट्रक्शन है वो आपको ग्रुप के ऊपर शेयर किए जाएंगे. यू जस्ट अपडेट, जो भी नए क्लासेस के अपडेट आ जाएंगे उसके यूजर नेम पासवर्ड आ जाएंगे, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा. ओके, सो that's it for today. Thank you so much. If anybody have any doubts, you can call us or directly message us on our mobile number. Okay, thank you.